ખડકી ટોલ નાકા સંકટ મોચન હનુમાનજી મંદિર જે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી અહીંયા છે એનો જીર્ણોદ્ધાર પ્રેમજીભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર આમના જે બેઠા છે એમના ફાધર હતા, એમને આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરેલો અને પછી ધીરે ધીરે 1982થી આ મંદિરમાં સુંદરકાંડના પાઠ ચાલુ થયા અને એ સુંદરકાંડના પાઠ દિવસે દિવસે ક્રમ બાય ક્રમ વધતો ગયો અને આજની તારીખમાં આ સુંદરકાંડના પાઠ શ્રાવણના 4 શનિવાર હનુમાન જયંતિ એ કમસે કમ 3 થી 4 હજાર માણસો ભેગા થઈ આનો લાભ લે છે અને અહીંયા ભંડારો પણ કરવામાં આવે છે ને કાલોલ, વેજલપુર, ગોધરા, હાલોલ ત્યાંથી બધા લોકો અહીંયા દર્શને આવે છે. આ મંદિરની હિસ્ટ્રીમાં એવું છે કે અહીંયા 2 પથ્થરો આવેલા છે અને એ 2 પથ્થર જે છે એ ચમત્કારિક પથ્થર છે. એ પથ્થર હમણાં અમુક વર્ષ પહેલાં કોઈ ઉઠાઈ ગયું હતું અને એ પથ્થરને પાછા રાતોરાત મૂકી ગયા હતા. એ પથ્થર ઉપર જે માણસ બેસે છે ને ઓટોમેટિક જો ફરવા લાગે તો એનું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે અને એ લોકો મનમાં પહેલાં પ્રશ્ન કરી હનુમાનજી સામે પ્રશ્ન મૂકે છે અને પછી પથ્થર ઉપર બેસે છે. પથ્થર પર બેસી જો એમને એમ પથ્થર ફરતો થઈ જાય તો સમજવું કે એનું જે કાર્ય છે એ પૂર્ણ થવાનું છે. આ મંદિરની અંદર 2 ચમત્કારિક પથ્થરો આવેલા છે. હવે જે આ પથ્થરની ઉપર બેસે છે અને હનુમાનજી દાદાને પ્રાર્થના કરે છે કે મારા કાર્ય સિદ્ધ થાય તે માટે હું આ પથ્થર પર બેસું છું, તો યથા યોગ્ય મને સહાય કરશો. હવે અમારા ભાઈ બેસશે, પથ્થર પર બેસો. હવે આ ભાઈ પથ્થર પર બેઠા છે બેલેન્સ રાખીને, અને પહેલાં તો એ બેલેન્સ રાખે છે, પછી જો કાર્ય સિદ્ધ થવાનું હોય તો એ પથ્થર ફરે છે. ફરો, ઓટોમેટિક પછી પથ્થર ફરશે. હાથ હાથે રાખો. આ રીતે પથ્થર ફરે એ ઓટોમેટિક ફરે. એમ દરેક વ્યક્તિને મનમાં એક શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય કે મારું કાર્ય સિદ્ધ થવાનું છે અને શ્રદ્ધા એ જ વિશ્વાસ છે. ક્લોકવાઇઝ બી ફરે અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરે તો તમારે બાધા રાખવાની, એવું સમજે. બીજા પથ્થરનું શું કામ છે? 2 પથ્થર સેમ જ છે, બંને પથ્થર સેમ જ છે. बताइए महाराज जी. 21 साल से यहाँ सेवा पानी कर रहे हैं मैं. और आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए हो? और वैसे आप यहाँ पर जब भी आए तब मंदिर किस तरह का था और आज क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन वो कुछ नहीं, झोपड़ी थी, झोपड़ी भी टूट गई थी. अच्छा, उस समय एक झोपड़ी थी ना? झोपड़ी टूट गई थी, ख़त्म हो गया था. अच्छा, किसी आप ही थोड़ा विस्तृत परिचय दीजिए बापू. હા, બાપજી જ્યારે આવ્યા હતા આ મંદિરમાં ત્યારે અહીંયા તો એટલી બધી વ્યવસ્થા નહોતી. એના આવ્યા પછી આ બધી વ્યવસ્થા હમણાં જે જોઈ રહ્યા છે, ભોજન માટેનું જે કક્ષ બનાવેલું છે, આ મંદિરને ડેવલપ કરેલું છે અને આ જે ગેટ બનાવેલો છે એ પ્રેમજીભાઈ બળગા પરિવાર તરફથી એ આખો ગેટ બનાવવામાં આવ્યો છે અને એમની પણ સેવા બહુ છે. અને મહારાજ સતત એકલા રહે છે પણ કોઈ અસામાજિક તત્વ અંદર આવી શકતું નથી. આ રાજુભાઈ છે, વેજલપુરના વતની છે. એમની પોતાની જ્વેલર્સની દુકાન છે. એમનું નામ છે રાજુભાઈ હસમુખલાલ સોની ને સારી રીતે ખડકી મંદિરમાં એક જ અવાજે તત્પર જે સૈનિક કહેવાય ને, અમારે જરૂર પડે એ વસ્તુ અમે ફોન કરીએ એટલે તૈયારીમાં જ અહીંયા વસ્તુ હાજર થાય. આ છેલ્લા 15 થી 20 વર્ષથી આ જે સુંદરકાંડ ચાલે છે અહીંયા, એમાં એમની સેવા અચૂક હોય છે અને જબરજસ્ત સેવા આપે છે. दोस्तों, अभी हम संकट मोचन हनुमान खड़की पर है और जैसे आपने इस मंदिर के इतिहास के बारे में जाना और यहाँ का जो भी चमत्कारिक पत्थर है उसकी क्या महात्म्य है और उसका क्या काम है उसके बारे में भी आपने प्रत्यक्ष जाना. लेकिन अभी
यहाँ पर एक और तैयारी चल रही है। कल यहाँ पर हनुमान जयंती महोत्सव मनाया जाने वाला है, तो आज से ही यहाँ पर सभी जो खान पकवान महाप्रसाद है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर एक खास रसोईया है जिनका नाम हरिया भाई है और उन्हें हनुमान जी के ऊपर काफ़ी श्रद्धा है। पिछले कई सालों से वह इस मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको उस महान शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिनका भाई है। जय बजरंगबली हरिया भाई। जय बजरंगबली। हरिया भाई, अपने बारे में बताइए, आप कितने साल से यहाँ पर सेवा करते हैं और ऐसा क्या हुआ कि आपका झुकाव इस मंदिर के प्रति, हनुमान जी के प्रति कुछ ज़्यादा बढ़ गया? दादा का बहुत चमत्कार है। कैसा चमत्कार, क्या चमत्कार हुआ था? अपने पास कुछ नहीं था, इधर सब कुछ है। अच्छा, मतलब हनुमान जी ने, संकट मोचन हनुमान जी ने आपकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण की। और आप कितने सालों से यहाँ पर सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं? 25 से 30 साल से। 25 से 30 साल, मतलब तब तो यहाँ पूरा मंदिर इतना विकसित भी नहीं हुआ होगा ना? हाँ। अच्छा, तो अभी आप क्या बना रहे हैं? क्या मतलब कल की तैयारियां चल रही है ना? कल पूरी की जोर तैयारी शोर से। चल रही है। तो अभी ये क्या बन रहा है? ये चाशनी है। चाशनी मतलब कौन बूंदी सा की। पकवान? बूंदी बना रहे बूंदी, हैं? हाँ। आप हर तरह का पकवान बनाना जानते हैं? हर तरह का। मतलब आपकी खुद की कहीं पर दुकान ऐसा कुछ है क्या? नहीं, केटरिंग का काम है। अच्छा, ये अभी मोहनदार की है। हरिया भाई ने यहाँ पर जो प्रेम देव रसोई घर यहाँ पर है और ये उनके दाता है जो स्वर्गस्थ देवी बेन प्रेम जी भाई बड़धा और स्वर्गस्थ प्रेम जी भाई बोधा भाई बड़गा, ये दोनों इस मंदिर के जो प्रेम देव रसोई घर बनाया गया है उनके मुख्य दाता है। और अभी आप जैसे देख सकते हैं, हरिया भाई आप हमें बताइए क्या बनाया है आपने यहाँ पे? ये मोहन थाल बनाया है। अच्छा, यहाँ पर प्योर घी का, शुद्ध घी का ये सभी मोहन थाल की यहाँ पर चौकी लगा हुई है और ये सभी मोहन थाल कल यहाँ पर प्रसाद के तौर पर बांटा जाएगा। इसकी खुशबू आ रही है और खुशबू को देखकर ही, उसको सूंघकर ही इसके स्वाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और करीबन कितना किलो यहाँ पर ये बनाया जाएगा? 150 किलो का बनाया है। 150 किलो। और यहाँ पर जब भी महाप्रसाद होता है तो कितने भाविक जन इसका लाभ लेते हैं? 3 से 4 हजार पर। 3 से 4 हजार लोग। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 3 से 4 हजार लोग इस महाप्रसाद को ग्रहण करेंगे। और सिर्फ यहाँ पर मोहनथाल नहीं है, लेकिन हर तरह के जो भी पकवान है, अभी जैसे बूंदी बना रहे हैं, यहाँ पर हर तरह के पकवान पहले भगवान श्री हनुमान जी को पिरसे जाएंगे और बाद में जो भी जितने भी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे उनके लिए वह प्रसाद ग्रहण करने जाएंगे। तो दोस्तों, यही थे संकट मोचन हनुमान जी और उनकी एक आध्यात्म से जुड़ी हुई गाथा, वह चमत्कारिक पत्थर, उससे जुड़ा हुआ एक रोचक इतिहास, और हमारे हरिया भाई जिन्होंने हनुमान जी के लिए अपना पूरा कर्म यहाँ पर सौंप दिया है। आशा रखता हूँ कि संकट मोचन हनुमान जी मंदिर का यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी इस कार्य में जुड़े हुए, मतलब मुकेश भाई है, हरिया भाई है और जो भी बड़गा परिवार है और जिनके नाम मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं है। आप इस भगीरथ कार्य में, इस सेवा कार्य में ऐसे ही जुड़े रहे। भगवान हनुमान जी आपको पूरी श्रद्धा और हिम्मत दे। जय हो संकट मोचन हनुमान जी। अरे जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, जहाँ दिवस तहाँ भानु प्रकाशो, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय।